We are going to start with rotational motion JE lecture, objective problem solving level 1, page number 180. Okay, we will be doing even numbers. Question number 2. The radius of gyration of a disc of radius 25 centimeter. तो क्या दिया हुआ है? Radius is given as 25 centimeter. About the centroidal axis is equal to what? तो हमको क्या चाहिए? Radius of gyration about the center of a disc. अच्छा, what is moment of inertia for a disc about the center is mr square by 2. Can I say radius of gyration in terms of moment of inertia as mkc square? m और m cancel हो गया तो kc क्या आएगा? r by root 2. 25 centimeter by root 2 centimeter. This will be the answer. Okay, madam. Question number 4 पर आते हैं. A man is standing on a platform, holds the weight outstretched. The system is rotated about the central axis. So there is a platform and a man is standing here. Okay, holds the weight outstretched. तो ऐसे उसने weight पकड़ कर रखा है outstretched. So can I say moment of inertia ज़्यादा है? Because moment of inertia depends on distribution of mass with respect to axis of rotation. If now the weights are pulled together, तो ये केस में क्या हो रहा है? ये केस में moment of inertia ज़्यादा है, तो ओमेगा कम रहेगा. Because L is I omega, which is nothing but a constant. So I बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा. Now second case में क्या कह रहा है कि this person pulls his arms closer. So he is standing here, but he is pulling the arms closer. Can I say moment of inertia घट गया तो ओमेगा बढ़ गया. Because L is nothing but constant, so I बढ़ेगा, I घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा. So this will be the condition. Now we have to see the answers. The angular velocity will increase. Yes sir, it will increase. तो ओमेगा will increase. L is constant, तो A भी हो गया, B भी हो गया. Kinetic energy will increase. Obviously the kinetic energy will increase because kinetic energy का formula is half I omega square. बोलो, यहाँ पर ओमेगा बढ़ चुका है. So we can see, और kinetic energy का और एक formula is L square by 2 है. If you remember, can I say L is constant? I कम हो गया. So kinetic energy will increase. So answer will be C also. That kinetic energy will increase. So answer will be all of the above. बोलिए. So this is all about question number 4. I hope everyone is understanding. Question number 6. Two bodies A and B are made up of the same material. Material का मतलब density same है. हाँ भाई. Having moment of inertia in the ratio of I1 upon I2 का ratio कितना है? 16:18. The ratio of M1 to M2. हाँ भाई. Okay, तो शुरू करके देखते हैं हम लोग क्या होगा. Can I say डेटा में दिया है ρ1 is equal to ρ2. Density का फॉर्मूला क्या? Mass into density is mass upon, okay, volume. So mass m1, volume. Suppose if I say that ये एक डिस्क है, बॉडी का शेप भी पता नहीं है तो वॉल्यूम की जगह कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग. क्या लिख सकते हैं? कैन आई से अगर डिस्क होगा तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर टी. बोलो, ये क्या हो जाएगा? m1 में m2 पाई r1 स्क्वायर हो गया, ये r2 स्क्वायर t2 हो जाएगा. बराबर है भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो यहां से पाई और पाई कैंसिल हो गया. m1 अपॉन m2 विल बिकम क्या? r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर इंटू t1 बाई t2. क्लियर है? अच्छा,
ओके, क्या T1 और T2 का रेशियो पता है आपको? आपको T1 और T2 का रेशियो पता नहीं है? अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला भी क्या रहेगा? mr², 2/5 mr², हाफ mr²। तो m और r स्क्वायर दिया है, t के बारे में हमको कोई पता नहीं है। यहाँ पे t का इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। सिंस t का इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, कैन आई से इट कांट बी ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको उनको बॉडी देना चाहिए कि कौन सी बॉडी है, या तो डिस्क है, या तो सॉलिड स्फीयर है, या तो हॉलो स्फीयर है। यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कौन सा बॉडी है। ओके, सो यू कैन नॉट डू इट। पॉइंट नंबर 8, a circular table rotates with a vertical axis with a constant speed omega। तो एक ऐसे ही घूम रहा है with a speed omega। A circular pan rests on the turntable with the center coinciding with the table and rotates with the table. The bottom of the pan is covered with a uniform small thick layer of ice placed at the center. The ice starts melting. अभी सपोज यहाँ पर है ना, एक आइस का क्यूब रख दिया सेंटर में, कह रहा है आइस पिघलना शुरू हुआ। सो कैन आई से व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग due to centrifugal force, it will move where, sir? Away from center. And since it is moving away from center, moment of inertia will increase, so omega will decrease. ये समझ में आ रहा है क्या? So क्या हो रहा है? So क्या हो सकता है? Omega will decrease, so answer will become B। फिर से एक बार देखो, when the ice is placed at the center, when the ice starts melting, तो ये जो पानी बन रहा है वो पानी कहाँ पर जाएगा? It will move away from the center, ना? Since it is moving away from the center, centrifugal force के कारण moment of inertia will increase because distribution of mass has become more. If distribution of mass has become more, omega will become less. Why, sir? Because L is I omega, which is nothing but what? A constant. Clear? Okay, we are doing question number 10. A solid sphere rolls down on two different inclined planes. दो अलग-अलग inclined plane है of the same height, but of different inclination. दोनों का थीटा अलग-अलग है। कह रहे क्या सेम रहेगा? अच्छा, हमको मालूम है जब वो रोल करते हुए नीचे आएगा तो वेलोसिटी when it reaches down is √2gh1 plus k² by r², and time taken to come down is 1/sin theta √2h by g 1 plus k² by r²। ये दोनों चीजें हमने सिनॉप्सिस में पढ़ी हुई है। अच्छा सर, अच्छा कैन यू टेल मी व्हिच फार्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा? पहला वाला देखो, इसमें थीटा नहीं है, तो कैन आई से वेलोसिटी इन बोथ द केसेस व्हेन इट रीचेस द बॉटम विल बी द सेम। क्या अलग अलग लगेगा? टाइम। कैन आई से टाइम इज इनवर्स टू sin थीटा, सो टाइम विल बी different. Why? Because time depends on theta, but velocity is independent of theta. तो आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा B। बोलो। Okay. Now we come to the next question. Question number 12. A disc solid sphere of the same mass. तो एक डिस्क है और दूसरा वाला सॉलिड स्फीयर है, सेम मास है, मींस m1 will become equal to m2, सेम है। ओके सर, एंड रेडियस भी सेम है। रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, द रेशियो ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग। सर फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? एक्टिंग फ्रिक्शन इज mg sin थीटा अपॉन 1 plus r² by k²। भाई समझ में आ रहा है क्या? ये ओके। सो अब हम देखते हैं, पहले डिस्क के बारे में बात करेंगे। तो फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द डिस्क विल बिकम mg sin थीटा, मास तो सेम है ना, तो mg sin थीटा सेम रहेगा, थीटा भी सेम है। 1 plus k² by r² for disk is half, so r² by k² will become 2। तो ये हो जाएगा बेटा mg sin थीटा by 3। अब हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन सॉलिड स्फीयर। ये हो जाएगा mg sin थीटा विच इज सेम बिकॉज मास सेम, थीटा सेम,
upon 1 plus r square by k square. K square by r square is 2 by 5, so it will become 5 by 2. So this will become mg sin theta upon क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 7 by 2. So this will be written as 2 by 7. This is friction acting on solid sphere. हाँ बेटा, अब आपको क्या पूछा, रेशियो पूछा है, तो पहला वाला रेशियो अपॉन सेकंड वाला रेशियो मींस इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2. सो फोर्स एक्टिंग ऑन डिस्क अपॉन फोर्स एक्टिंग ऑन सॉलिड स्फीयर इज व्हाट बेटा, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 2 by 7. सो इट विल बिकम 7 by 6. आई होप यू ऑल हैव गॉट द आंसर. आंसर इज ए. ठीक है भाई. विल कम टू क्वेश्चन नंबर 14. A solid homogeneous sphere. So there is a solid sphere. क्या कर रहा है वो? It is moving on a rough horizontal plane, partly rolling and partly sliding during this kind of motion. Okay. तो कह रहा है कि एक solid sphere है जो partly roll कर रहा है और partly slide कर रहा है. ये V है, ये ओमेगा है. कोई बता सकता है? रोलिंग कंडीशन होगा तो VCM इज आर ओमेगा, मगर यहाँ पर VCM विल नॉट बिकम इक्वल टू आर ओमेगा बिकॉज कह रहा है इट इज पार्टली स्लाइडिंग एंड पार्टली रोलिंग. अब हमको मालूम है कि ये सरफेस रफ है. अच्छा, तो मतलब फ्रिक्शन आएगा. फ्रिक्शन क्या काम करेगा? फ्रिक्शन विल ट्राई टू मेक VCM is equal to R omega. Okay. Can I say friction is nothing but an external force? Suppose friction यहां पर लग रहा है आगे. Suppose लग रहा है. मैंने मान लिया कि friction कहां लग रहा है बेटा? आगे लग रहा है. External force आ गया. Can I say अगर external force आ गया तो इसके कारण एक एक्सटर्नल टॉर्क बनेगा ऐसे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. एक्सटर्नल टॉर्क बना अबाउट सेंटर बना. कितना बना? फ्रिक्शन इनटू आर. और कैसे डायरेक्शन में? ऐसे बना. ये बना अबाउट सेंटर बना. बट कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज टॉर्क एक्सटर्नल about bottom point? फोर्स तो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0 है, बिकॉज बॉटम पॉइंट पे 0 है, तो फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, मतलब टॉर्क भी 0 हो गया. तो कैन आई से नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट बॉटम इज 0 इफ एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट बॉटम इज 0. जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है तो कैन आई कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, बट अबाउट विच पॉइंट? अबाउट बॉटम मोस्ट पॉइंट. और कोई भी पॉइंट पर आप मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हो. यू कैन ओनली कंजर्व एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस. दैट मींस आई कैन से अबाउट द बॉटम मोस्ट पॉइंट. समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब भी फ्रिक्शन एक्ट करेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज डन अबाउट दैट पॉइंट. सो आंसर यहां पर रहेगा बी. एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट एनी पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, बॉटम पे, इज कंजर्व्ड, अदरवाइज नॉट. सो आंसर यहां पर बिग लेटर्स में बी रहेगा. अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर हो गया बेटा? 16 पर आता है. See what's going on. A solid sphere rolls without slipping on a rough horizontal surface, moving in the speed v. So कह रहे हैं यहाँ पर एक solid sphere है जो VCM से जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है. बोलो. It makes an elastic collision with a smooth vertical wall.
तो यहां पर एक दीवार है जो स्मूथ है। कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इट मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या, जितने मोमेंटम से आया था उतने मोमेंटम से टकराकर वापस जाएगा। सो दैट मीन्स व्हाट, v से आएगा टकराएगा और v उल्टा कर देगा, ये v ऐसे हो जाएगा बिकॉज इट इज इलास्टिक कोलिजन ना। Okay, so relative velocity of approach and relative velocity of separation has to be the same, but since it is a smooth wall, यहाँ पर कोई friction नहीं है, तो ये ओमेगा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ओमेगा को बदलने के लिए टॉर्क जो मांगता है वो यहाँ पे टॉर्क नहीं है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। देखो ऐसे आया, वो टकराया, इलास्टिक कोलिजन हुआ, तो इसने ऐसे बदल दिया इसको ये, बट ओमेगा को कोई बदलने वाला नहीं है, ओमेगा को बदलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये स्मूथ वॉल है तो फ्रिक्शन नहीं आएगा, फ्रिक्शन नहीं आएगा तो टॉर्क नहीं आएगा, टॉर्क नहीं आएगा तो अल्फा नहीं आएगा, अल्फा नहीं आएगा तो ओमेगा बदली नहीं होगा। सो दैट मींस ओमेगा इज गोना बी इन दिस डायरेक्शन ओनली आफ्टर कोलिजन। दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब मुझे आप बताइए क्या ये प्योर रोलिंग कंडीशन है? नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको देखते हैं, दिस इज जस्ट आफ्टर कोलिजन, आई एम रबिंग दिस, वी देखो वी इस पॉइंट पर इस तरफ ही है, एंड अगर ये ऐसे घूम रहा है तो आर ओमेगा भी इधर है। और अगर हमने प्योर रोलिंग का कंडीशन पढ़ा है तो आपको मालूम है वीसीएम एंड आर ओमेगा उल्टा होना चाहिए। यहां पर द नेट वेलोसिटी ऑफ द बॉटममोस्ट पॉइंट विल बी वीसीएम प्लस आर ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 0 बेटा। तो इसका मतलब ये पॉइंट आगे घसड़ते हुए जाएगा, दिस पॉइंट इज फॉरवर्ड स्लिपिंग। समझ में आ रही है बात? अब यहां पर रास्ता जो है वो रफ है। अब ये वाला फ्रिक्शन क्या बोलेगा, यहां पर जो रास्ते पे फ्रिक्शन है वो क्या बोलेगा, भाई मुझे तो वीसीएम आर ओमेगा बनाना है, मतलब ये पॉइंट को रेस्ट पर बनाना है, तो ये फ्रिक्शन लगाएगा, कहां लगाएगा बेटा, पीछे लगाएगा, बिकॉज़ ये पॉइंट आगे घसड़ते हुए जा रहा है, तो इंटेंशन ऑफ मोशन आगे है, तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा, मैं तो हूं पीछे। ये फ्रिक्शन क्या करेगा, ये फ्रिक्शन v को कम करेगा और r ओमेगा को भी कम करेगा। ओके, क्योंकि दिस फ्रिक्शन का टॉर्क इज दिस वे ना बच्चा, तो ओमेगा ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ओमेगा ऐसे चाहिए, मतलब थोड़ी देर बाद अगर मुझे इसको रोल कराना है तो वीसीएम ऐसे होना चाहिए, होना तो चाहिए वीसीएम, बट ये वीसीएम अलग है ना, इससे ये वाला वीसीएम ही है, इसको नाम पकड़ता है वीसीएम डैश, जो अलग हो चुका। एंड ये ओमेगा से काम नहीं चलेगा, अभी मुझे ओमेगा डैश ऐसे मांगता है। अच्छा, ये ओमेगा डैश को बदली किसने करवाया, ये वीसीएम डैश को बदली किसने करवाया, ये फ्रिक्शन ने ऐड करवाया यहां पर। दैट मींस ये फ्रिक्शन ये ओमेगा को पहले कम करेगा, कम करेगा, कम करेगा, जीरो बनाएगा, फिर उल्टा कर देगा। इट इज लाइक यू नो व्हाट, इट इज लाइक दिस वे। अगर एक बॉडी ऐसे चल रही है और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो आपको तो पता है काइनेमैटिक्स में थोड़ी देर बाद ये बॉडी जाके रुक जाएगी और फिर उल्टी हो जाएगी। अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? सो सेम थिंग, टॉर्क इज आल्सो, फ्रिक्शन इज आल्सो डूइंग। फ्रिक्शन ने ऐसे टॉर्क बनाना है, ओमेगा ऐसे है, तो पहले ये टॉर्क इज रिटार्डिंग टॉर्क, जो ये ओमेगा को कम करेगा, कम कर करके ओमेगा को जीरो बना देगा और फिर उल्टे डायरेक्शन में पलटा देगा, सच दैट एनी रैंडम टाइम पर VCM dash will become equal to R omega dash। तो ये थी कहानी पूरी इस इक्वेशन की। अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चंस है, आंसर्स क्या है। आंसर कह रहा है इट विल मूव विद स्पीड v इनिशियली, जो स्पीड से आया था वही स्पीड से बाद में जाएगा। हाँ सर, यस सर, ए पॉइंट सही है। इट्स मोशन विल बी रोलिंग विद स्लिपिंग इनिशियली, रोलिंग विद स्लिपिंग, ये फॉरवर्ड स्लिपिंग है ना, एंड इट्स रोटेशनल मोशन विल स्टॉप मोमेंटरली, बराबर है, थोड़ी देर बाद ओमेगा रुक जाएगा बिकॉज उसको उल्टा पलटना है एट सम इंस्टेंट। यस सर, बी भी सही है। सी पॉइंट क्या कह रहा है, सी इट्स मोशन विल बी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग आफ्टर सम टाइम। हाँ, कुछ समय बाद, जो हमको मालूम नहीं है, टाइम बाद में फाइंड करेंगे, कुछ समय बाद फ्रिक्शन इसको प्योर रोल कर देगा, तो आंसर सी भी है, मतलब आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। गेटिंग इट, व्हाट्स हैपनिंग। ये कॉन्सेप्ट फिर से हम लोग ध्यान रखना, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है।
देखो फिर से, पहले रोल कर रहा था VCM से ओमेगा से, VCM शुड बिकम इक्वल टू R ओमेगा, यहाँ पे VCM इज इक्वल टू R ओमेगा। दीवार से आकर टकराया, दीवार ने क्या किया, इलास्टिक कोलिजन किया, VCM को उल्टा पलटी कर दिया, बट ओमेगा को बदली नहीं किया बिकॉज यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। बट यहाँ पर हमको मालूम है ये पॉइंट आगे घसरते हुए जा रहा है, सो दिस इज फॉरवर्ड स्लिपिंग। अब यहाँ पर फ्रिक्शन आ जाएगा बिकॉज फ्रिक्शन कहेगा कि मैं आपको बनाऊंगा प्योर रोलिंग कंडीशन में, तो फ्रिक्शन पीछे एक्ट करेगा, जिसका टॉर्क ऐसे रहेगा बट ओमेगा ऐसे घूम रहा है, तो ये टॉर्क इस ओमेगा को कम करेगा, जीरो बनाएगा और उल्टा पलट देगा लाइक दिस कंडीशन। And at any instant of time after टकराव T V VCM dash will become equal to R omega dash. I hope everyone has understood this concept. सम नंबर 18 पर आता है, कह रहे एक स्पूल है, स्पूल फोर्स यहां पर लग रहा है और इसका फोर्स यहां पर लग रहा है, बोलो, एंड ये रफ सरफेस है। A spool is pulled horizontally on a rough surface, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन आने वाला है by two equal and opposite forces। तो हमको मालूम है कि नेट फोर्स जीरो हो गया, देखो सिस्टम पर। Which of the following statement is correct? कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास किस तरफ जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, टॉर्क अबाउट सेंटर निकालते हैं। कह रहे हैं इसे नेट फोर्स तो जीरो है, ओके तो एक्सेलरेशन अभी फिलहाल नहीं है इन दोनों के कारण, बट क्या टॉर्क है, हाँ टॉर्क तो है सर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे घुमाएगा। अच्छा इसका भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे ही घुमाएगा, सो कैन आई से नेट टॉर्क विल बिकम Fr प्लस Fr, सेम है ना, कहां 2Fr इन विच डायरेक्शन बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समझ में आ रहा है। दैट मीन्स ये ऐसे जाने वाला है, तो इसका जो अल्फा आएगा वो ऐसे आएगा। अच्छा अगर ये स्मूथ होता तो ये ऐसे ऐसे ही घूमता रहता, अपनी जगह पर ही घूमता रहता, ओके बट रफ है, रफ बोलेगा फ्रिक्शन है। अच्छा फ्रिक्शन का काम क्या रहता है, प्योर रोलिंग करवाना। ये बोलेगा भाई अल्फा ऐसे है, इसका मतलब आर अल्फा ऐसे, अल्फा ऐसे है बेटा, तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा रहेगा ना इस पॉइंट का। कोई बता सकता है फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, फ्रिक्शन को ए इज इक्वल टू आर अल्फा बनाना है, मतलब ये जो फ्रिक्शन है वो इस तरफ एक्ट करेगा ताकि ये फ्रिक्शन ए को दे पाए, ताकि थोड़े समय बाद ए विल बिकम इक्वल टू आर अल्फा डैश। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग। और ये फ्रिक्शन के कारण देयर विल बी एन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ड्यू टू दिस वन, बिकॉज इन और इसके कारण तो कोई फोर्स नहीं है, ये फ्रिक्शन आगे की तरफ एक्ट करेगा ताकि वो ए इज इक्वल टू आर अल्फा डैश थोड़ी देर बाद बना पाए, क्योंकि आपको मालूम है अल्फा तो इस तरफ है ही, ऐसे है ही, आपको ए बनाना है, तो ए कौन बनाएगा, फ्रिक्शन बनाएगा। आपको पता ही है अगर अल्फा ऐसे होगा तो ए ऐसे होना चाहिए, यानी ये ए को किसने दिया बेटा, ये ए को फ्रिक्शन ने दिया। दैट मीन्स the center of mass of the whole spool is going to move towards which direction beta, right direction। I hope you all have understood this question, getting it? So answer यहाँ पर आपको रहेगा B, that is center of mass moves towards right। Okay, question number 20। The moment of inertia for a hollow sphere of mass m, इसका mass m है, hollow है, inner radius is r and outer radius is 2r। Okay, एंड इसका डेंसिटी हम लोग पकड़ते हैं यूनिफॉर्म डेंसिटी विच इज रो। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमेट्रिक एक्सिस, मतलब इस एक्सिस पर, ये बाहर निकलने वाले एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। अच्छा ये कौन सा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। एक काम करते हैं पहले इसके डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। डेंसिटी की फॉर्मूला क्या रहेगा, मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मास है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज 4/3 पाई बड़ो आर क्यूब, दैट इज 2r क्यूब माइनस आर क्यूब। बोलो मास इसका ये है ना भाई, ये अंदर तो खाली है तो ये तो निकालना पड़ेगा ना, 4/3 पाई बड़ो आर क्यूब माइनस 4/3 पाई छोटो आर क्यूब। दिस आंसर विल कम 3m/28 पाई आर क्यूब। ये मैंने कैलकुलेट करके, ठीक है। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस पॉइंट पर। मैं एक काम कर सकता हूं, इसको ऐसे पकड़ सकता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको 2r पकड़ते हैं पूरा बड़ा वाला, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट दिस, माइनस
moment of inertia of this inside one at this point. Okay, so net moment of inertia जो आपको मिलेगा will be moment of inertia of 2r minus moment of inertia of r. ये निकालना है मुझे. Are you understanding what's happening? अच्छा, उसको करने से पहले मुझे इसका मास निकालना पड़ेगा. मास, इसका मास, इस पूरे का मास, इसका मास m है ना. ये जो भरा हुआ है ना, इसका मास m है. इसका मास पता नहीं है. Can I say mass of 2r will be density, तो यूनिफॉर्म है, into volume. तो density is rho into इसका volume. Volume is 4/3 pi 2r cube. That will be written as 3m by 28 pi r cube into 4/3 pi into 8 r cube. बोलो, ये 3 pi r cube cancel हो गया. Okay, 4 7s are, so this will become 8m by 7. This is mass of 2r. समझ आ रहा है बात? आपको समझ में आ रही है? आई होप. ओके, क्लियर है ना? तो मास ऑफ आर कितना रहेगा भाई? टोटल मास m है. एक काम करते हैं, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं. मास ऑफ आर कितना रहेगा? डेंसिटी into volume is 4/3 pi r cube. और this will be written as what? 3m by 28 pi r cube into 4/3 pi r cube. तो pi r cube ऐसे ही कैंसिल हो गया. 4 7s are 3. तो ये हो जाएगा m by 7. करेक्ट है ना बेटा? सही है कि नहीं? आप यहां पर भी देख सकते हो, अगर इसका मास m है तो m by 7 इसमें से निकालेंगे तो ही तो m आएगा. थोड़ा सोच के देखो. तो ये मास ऑफ r है. मास ऑफ r. तो हमको दो चीजें यहां पर मिली, आप जो नोट कर सकते हो. वन इज मास ऑफ 2r एंड अदर इज मास ऑफ r. तो हम लोग याद रख लेंगे, इट इज 8m by 7 एंड इट इज m by 7. ओके, आप उसको नोट करना. सो कैन आई से मास ऑफ 2r is 8m by 7 and mass of r is m by 7. ऑब्वियसली यही रहेगा ना. अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया था? ये 2r का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो एट द सेंटर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके ऑफ दिस 2r. अच्छा, कौन सा बॉडी है बच्चा? ये बॉडी जो है वो एक सॉलिड स्फीयर है ना. ये तो अभी सॉलिड स्फीयर बन गया ना. ये उसी में तो काट के हॉलो स्फीयर बनेगा. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सॉलिड स्फीयर? 2/5 m. इसका m कितना है? इसका m 8m by 7 है. बराबर है क्या? 2/5 m r स्क्वायर. अरे सही है ना भाई? तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 16m by 7 5 are 35 into 4r स्क्वायर. बोल सकते हो. सो दिस विल बी 64m r स्क्वायर by 35. इक्वेशन 1. अब हम क्या करेंगे? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m is 2/5 m. m is m by 7 r square. r is r. ये हो जाएगा 2m by 35 r square. इक्वेशन 2. और मैंने आपको क्या बताई थी? नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया will be I2r minus IR. बोल सकते हो this minus this. So 64 mr square upon 35 2 mr square. तो कितना हो जाएगा बेटा? 60 by 35 mr square. अरे yes और no बेटा? Oh sorry, 62 by 35 mr square. So this is moment of inertia net about that axis. Okay, आप उसको प्रैक्टिस करना. आंसर विल बी नन ऑफ दीज. दैट आंसर इज बी. क्लियर है? तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं I1 and I2 are moment of inertia of a uniform square plate. Then I1 upon I2 कितना है? अच्छा, हमको मालूम है अगर एक स्क्वायर प्लेट है of length L, then synopsis में हमने पढ़ा है कि moment of inertia about any this axis of this axis is ml square by 12. ये एक्सिस पर या ये एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? ml square by 12.
तो z एक्सिस पे कितना मोमेंटम इनर्शिया रहेगा? कैन आई से I z will become Ix plus I1? तो I z will be ml square by 12 plus ml square by 12 will become ml square by 6. ये ml square by 6 है यहाँ से. अच्छा, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये तो ml square by 6 ही है ना, आपको पता है. ओके अच्छा, ये एक्सिस और ये एक्सिस बनाने के बजाय मैं ऐसे दो एक्सिस बनाऊं तो भी क्या प्रॉब्लम है? कैन आई से ml square by 6 will be ml square by 12 plus ml square by 12? That means moment of inertia about this axis is same as moment of inertia about this axis. फिर से एक बार करते हैं. ये स्क्वायर है. Moment of inertia about any one side is ml square by 12. Any one side is ml square by 12. So this will be ml square by 6. That is Iz is Ix plus Iy. अच्छा, इसी स्क्वायर को यहाँ पर बनाते हैं, ये दो एक्सिस बनाते हैं और ये. अच्छा, ये तो ml square by 6 ही रहने वाला है. ये इधर. तो अगर ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस है तो ये हो जाएगा ml square by 12 और ml square by 12 because both the additions of this both will result in ml square by 6. That means moment of inertia about this axis is nothing but what? ml square by 12. Getting it? अच्छा, I2 क्या रहेगा? Can I apply parallel axis theorem? I naught is IC plus mass into distance square. So I2 will become I1 plus mass into distance square, that is ml square by 12 plus mass into distances L by root 2 का square will become L square by 2. तो ये हो जाएगा बेटा ml square by 12 plus 6 ml square by 12, that is 7 ml square by 12, that is I2, and we require the ratio of I1 to I2. So can I say this is ml square by 12 upon 7 ml square by 12. This will become I1 upon I2 is going to become what, bacha? 1 by 7. I hope everyone has understood this question. Question number 22 is done. Fourth one. Question कह रहा है uniform rod of length L is free to rotate in a vertical plane about a fixed horizontal axis through B. The rod begins to rotating from rest. The angular velocity any angle theta. तो हमको मालूम है कि एक रॉड है ऐसे और यहाँ पर हमने उसको हिंज करके रखा है. अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? इधर रहेगा L/2 पर. बोलो. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी जब ये एंगल थीटा घूम जाएगा तो ये सेंटर ऑफ मास जो है ना, मास m वाला, वो कुछ नीचे आ जाएगा, बराबर है? ऐसे सेंटर ऑफ मास इधर है, सही है ना? बाय हाउ मच हाइट? h थीटा है. विद दिस h हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है is L/2 1 minus cos theta. It is not L 1 minus cos theta. It is L/2 1 minus cos theta. देखो L/2 cos theta, so L/2 1 minus cos theta. बराबर है? Can I say change in potential energy is change in kinetic energy rotational? Change in potential energy is mgh, but h is L/2 1 minus cos theta, and it is the rotational kinetic energy is half I omega square. बोलिए. Can I say ये half और ये half ऐसे कट गया, ये हो जाएगा mgl 1 minus cos theta will become moment of inertia about the rod about one end is ml square by 3 into omega square. m और m कट गया, l और एक l कट गया, तो this will become 3g 1 minus cos theta by l will be omega square. So can I say 3g 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2 by l will become omega, और ये बना root of that thing. So this will be root of 3g by l, 6g by l into sin theta by 2 will become omega at any instant of time. बोलिए. So this is how you solve the rod वाला question, question number 24. We start with the 26th question. Find the moment of inertia of a thin sheet of mass m in the shape of an equilateral triangle. The length of each side is l. तो कह रहे एक लैमिना ऐसे रखा गया है. अब ये ध्यान से करना, दिस इज इम्पोर्टेंट. ये अच्छा इक्विलैटरल ट्रायंगल है 60, आपको मालूम है सब 60 होगा.
इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बोलिए सही है। अच्छा इसका तरीका क्या है? मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले सिलेक्ट ओरिजिन। ओरिजिन हमने इस पॉइंट को पकड़ लिया। गो टू एक्स एंड टेक dx। तो यहां से मैं x पर जाऊंगा और एक छोटी सी पट्टी लूंगा dx की। ये कितना है? dx है। ओके ये लेंथ हम लोग y पकड़ते हैं एंड इस मास जो रहेगा इसका मास रहेगा dm। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का तरीका है, सबको आना चाहिए। बोलो। थर्ड हमको देखना है इज द मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। यहां पर इट इज टू डायमेंशनल थिंग, so mass is distributed over area, so I will calculate mass per unit area which denoted by the letter sigma. Mass, पूरा mass distributed over area of the triangle. What is that? Area of the triangle क्या रहेगा? Half base is L into height. Height of an equilateral triangle is √3/2 times of length. बराबर है? ये कितना हो गया बेटा? ये 4m √3 L²। Is everyone understanding? ये मेरा सिग्मा, because it is a 2D motion. It is a two dimensional body. बराबर है? Step number 4, calculate mass dm। dm का मास रहेगा मास पर यूनिट एरिया into its area। बोलो। mass per unit area that is 4m by √3 L² into area of the element। area of the element क्या रहेगा? length into breadth। बराबर है? that is dx into 2y। देख सकते हो पट्टी length into breadth है ना, तो ये y पकड़ा है ना मैंने, तो इस चीज को y पकड़ा है तो ये भी y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i। आई ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? पहला हमने ओरिजिन पकड़ा, फिर गो टू x एंड टेक dx, एक छोटा सी पट्टी लेना है। ओके बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर पट्टी का चेंज होगा ना बेटा। फिर देखना है कि 1D बॉडी है, 2D बॉडी है कि 3D बॉडी। हमको मालूम है 2D बॉडी है तो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया, तो आई कैलकुलेट मास पर यूनिट एरिया। बिकॉज डीएम कैलकुलेट करने के लिए हमको ये मांगता है, बिकॉज इट इज मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ होता तो मैं लिखता मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम होता तो मैं लिखता मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। बोलो। तो ये ऐसे लिखा जाएगा डीएम 4 2 8m √3 L² y dx। बोलो। बट यहां पर दो वेरिएबल्स आ गए x और y। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो है वो 30 डिग्री है। देखो मुझे या तो रिलेशन सिर्फ x में बनाना है या तो y में बनाना है, ऐसे दो दो तो चलेगा नहीं। कैन आई से tan 30 will be y by x। tan 30 is 1 by √3 is y by x, so y is going to become x by √3। बोलो, उठा के इधर डाल दो। So it will become dm will become 8m √3 L²। y की जगह क्या लिखना है? x dx by √3। So this will become 8m 3 L² x dx। I hope everyone is understanding क्या हो रहा है भाई ये। अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पट्टी का निकालना है। ये मास पट्टी का मिल चुका है मुझे, ठीक है। कैन आई से इस पट्टी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई, इस पट्टी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई विल बिकम मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। मास इसका खुद का इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज x²। देख सकते हो पट्टी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस हमने आपको पहले किया था, दैट इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। सही है। अच्छा मास कितना है? 8m 3 L²।
x dx into x square will become x cube dx. बोल सकते हो yes or no sir? अच्छा, ये पट्टियां कहां से कहां तक रेंज हो रही है? दिस पट्टी इज रेंजिंग फ्रॉम, पूरा यहां से देख सकते हो ये ऐसे रेंज हो रही है, मतलब इट इज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू दिस पूरा चीज, एंड ये पूरा लेंथ है √3/2l. So since this all putties are ranging from 0 to √3/2l, can I integrate this equation? So can I say resultant moment of inertia will be integration of di will be, यहाँ पर constant है 8m/3l² बाहर आ गया, और इस चीज का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा x4/4, and you are integrating from 0 to √3/2l. I hope everyone is understanding. मैंने इंटीग्रेशन करने के बाद में लिख दिया आंसर. अच्छा, यहाँ पर ये हो गया 4 2 8, तो ये हो जाएगा 2m/3l² बेटा, yes or no? और इसका हमको वैल्यू डालना है, तो 3 का रेज़ टू 4 होता है 9, 2 रेज़ टू 4 इज 16 इंटू l4, तो ये हो जाएगा 2 8 16, 3 3 9, so this will become 3/8 ml², moment of inertia about the axis passing through O. I hope everyone is understanding. So this answer, यहाँ पर आंसर नहीं दिया है, the answer will become D, that is okay, none of these. I hope everyone has understood this method. ये important method है, steps का ध्यान में रखें, इसको बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ में आ जाएगा. Okay. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. We'll come to question number 28. 28 and 30 are similar type. I am doing only 28 ताकि आपको समझ में आएगा. 30 आप लोग कर लेना. Next time से हम लोग subjective शुरू करेंगे. So 28 question, I'll just draw the diagram. A thin rod of length 4l of mass 4m is bent at the points as shown in the figure. What is the moment of inertia of the rod as passing through O and perpendicular to the plane? हाँ बेटा, तो ऐसे फॉर्म में हमने इसको बेंड कर दिया और इधर हमने उसको हिंज कर दिया. बोलो सही है? ये L, ये L, ये L, ये L. बोलो सही है? अच्छा सर, एक काम करते हैं, इसको पकड़ते हैं. इस एक्सिस, ये एक्सिस है ना बेटा, ये एक्सिस है, ये हिंज है, ये एक्सिस पर रॉड को तोड़ते हैं. पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर. 2 नंबर और 3 नंबर के रॉड को अगर आप देखेंगे तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एंड ऑफ द रॉड. बराबर है क्या? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 3 इज ml²/3. एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? कोई बड़ी बात नहीं है. अच्छा, 1 के बारे में क्या ख्याल है सर? 1 के लिए हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा. क्या नहीं से इसका आईसी मालूम है? इधर से हमको इधर तक ट्रांसफर करना है, बिकॉज ये अगर एक एक्सिस है जो ml²/12 है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो IO मिलेगा ना हमको. सर ये डिस्टेंस कितना रहेगा? ये तो L है, ये बीचों बीच है, तो ये हो जाएगा बच्चा L/2. अरे है क्या नहीं? तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा √L² प्लस L²/4. बोलो, that will become 4 5 5L²/4. बोलो okay. So this will be √5L²/4. That could also be written as √5L/2. सही है ना? ऐसे लिख देता हूं मैं तो. So this is what √5L/2. अब can I say moment of inertia of this axis? इसका नहीं चाहिए, इसका तो ml²/12 है, इसको इधर ट्रांसफर करना है ना भाई. So moment of inertia of the पहले वाला axis about this axis will become ml²/12, इसका खुद का, प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा हो जाएगा 5L²/4. बोल सकते हो? तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा ml²/12 प्लस 15 ml²/12, दैट इज 16 ml²/12. 4 4 4 3, तो ये हो जाएगा 4 ml²/3. कैन आई से द सेम रेप्लिका इज देयर फॉर I4. क्यों? I4 का इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है हमको, सीधा इधर से इधर तक ट्रांसफर करना है, तो ये डिस्टेंस भी कितना रहेगा? √5L/2 ही रहेगा. सीधा मुझे ट्रांसफर करना है, तो व्हाट इज द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O? I1 ml²/3, नहीं 4 ml²/3 सॉरी, प्लस I2 ml²/3
प्लस I3 ml square by 3 प्लस I4 4 ml square by 3 4 5 6 7 तो 4 4 8 9 10 10 ml square by 3 yes or no sir? तो this will be the answer, that is B. So आप अगर ट्राई नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा, आपको ये ट्राई करना पड़ेगा. इसका डाउट सॉल्विंग ऑल्सो आई बी कंडक्टिंग ऑन जूम, बट आपको खुद को बैठ के ट्राई करना पड़ेगा, तभी ही आपको रोटेशनल मोशन जमेगा, वरना नहीं जमने वाला. गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग. थैंक यू वेरी मच.